aspirations and unlock their true potential. MentorKrish equips students with the necessary skills and knowledge to excel in competitive exams such as SAT, ACT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, and more. Beyond academic excellence, Ma'am and her team aim to nurture a generation of global citizens who are not only equipped with academic knowledge but also possess the skills and mindset needed to address complex challenges of the world. Neela Ma'am, please take the stage and enlighten us with your insights. Thank you, Palak. Wow, that was a wow introduction, and it is really good to see your students introducing you like this. Thank you everyone for joining in, and a heartfelt congratulations and thanks that you showed trust on us and took out some time on the weekend to join this webinar. मुझे पता है आप सबके प्लान्स थे और आप सब ने उन प्लान्स को थोड़ा सा पीछे करके हम लोगों को इम्पोर्टेंस दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और पलक, थैंक्स टू यू ऑल्सो. ये अभी अभी कॉलेज से आई है, जस्ट 10 मिनट्स बैक शी टोल्ड मी कि आज मैं फंस गई हूँ, मेरा कॉलेज है. एंड आई वाज लाइक नहीं, आना तो तुम्हें पड़ेगा. सो थैंक यू पलक. चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं. आज का वेबिनार इज ऑल अबाउट फ्यूचर ऑफ करियर्स. जनरली वी टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ पीपल, फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड टुडे आई चोज समथिंग डिफरेंट. आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ करियर्स कि हम लोग अपने को प्रिपेयर कर रहे हैं. क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई का हम सबका एक ही मोटिव होता है कि हमें अपने को अल्टीमेटली एम्प्लॉयबल बनाना है, हमें जॉब करनी है, हमें मनी अर्न करनी है. और आजकल के स्टूडेंट्स का तो बहुत सेट है. आप उनसे पूछो बेटा आप क्या करना चाहते हो, they'll say I want to become an engineer. Why? मैम अच्छे पैसे कमाने और जिंदगी अच्छे से लीड करनी है. Very clear that it is my personal happiness and I want to be happy in my life, right? तो उसके लिए yes, there are certain tools, there are certain techniques which are required. कुछ चीजें जिन्हें हम लाइफ स्किल्स कहते हैं वो भी होती हैं, और कुछ स्किल्स जिन्हें हम आपका पैशनेट स्किल्स और आपकी की स्किल्स होती हैं वो भी कहते हैं. आज हम दोनों की बात करेंगे. तो चलिए मैं पहले आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ और सबसे पहले फ्यूचर ऑफ करियर्स के बारे में बात करते हैं. आज की डेट में अगर हम ट्रेंडिंग करियर्स की बात करें, जो कि 2023 के बहुत ट्रेंडिंग करियर्स हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, प्लीज चैट बॉक्स में जरा टाइप कीजिए. मैं चाहती हूँ कि एक थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन हो, मैं आप लोगों को समझूं और हम देखें कि आप क्या कहने रहे हैं. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज इट दैट इज कॉमन इन द स्क्रीन दैट यू रियली सी एंड यू से नीला मैम दिस इज समथिंग व्हिच इज रियली कॉमन. आई रियली सी दिस इन द स्क्रीन. जस्ट टाइप समथिंग इन द चैट बॉक्स, विल सी what is it that you can make out. Immediately स्क्रीन पर देखकर आप कहते हैं हाँ नीला मैम ये तो मैं इस very good. Siddharth said computers, very good. Technology, AI, excellent. Yes. So immediately you know that looking at this screen we can make out that okay, it is technology, artificial intelligence, and these things are really there. Yes, they are the most common or most trending careers of 2023, right? Do you agree that it has some creativity also? Because those who are creating such applications, they have something in their mind. They're really thinking out of the box. They have something creative in their minds, right? Okay. And you will be surprised to know that none of these careers really existed in 2000. There were no such career in 2000. So they have just emerged, right? In 23 years or 24 years of time, things have really changed. Earlier, what people were doing 23 years ago, they are not doing that. And I'll show you that how things are changing so rapidly that in the coming another 5 or 10 years, probably these jobs will also go. Something new will come, right? So the seminar is not to scare you. It is just to tell you that how important it is to keep your eyes open, how important it is to keep yourself motivated and prepared for future. And when is the future? Future is today. Today is the future. You prepare for future today and then you see the results also.
So this is going out to be an eye-opening experience for you. I just hope so, because the world is changing. Now the question is, are we changing with the world? Are we really prepared for this change? So what we need to, how we can really become future proof, how we can really ensure that, yes, we are ready for the future. See, you know that, the global Israeli is becoming very disruptive. We were never prepared for, COVID. It just came. And we learned our lessons. Probably, yes, we learned our lessons, right? We knew so many things, they totally became outdated in a day. And then there were so many technologies which came and they become the part of our life. Zoom meeting. We never thought of it. We used to have the physical classes. There used to be a physical contact with the children. And then suddenly there was like, no contact, only, online things, right? Changing career trends. Every year trend is changing. Every year the new things are added. Rise of smart machines and, yes, like AI, machines and systems, things are, when I still remember when AI came, I just told Rahul that, okay, probably now even my job will be replaced. He started laughing and he said, Neelam ma'am, nothing is really impossible. Instead of getting worried that your job will be replaced, please leverage AI in your daily work, and you won't believe that now life is so simple because of AI. So the moment I was really scared, things were really on my head. The moment I started leveraging this technology, the life really became simple and easy for me, right? And most of the careers that the promising careers that today they are there, they were not there earlier. But yes, there are certain skills that no matter what time comes, which are always necessary. You should know those skills. Critical thinking, thinking out of the box. It really helps. आप किसी भी काम को करने से पहले अगर उस काम को ही बहुत डिफिकल्ट मान लेते हो और आपको लगता है कि ये तो होगा ही नहीं, तो यकीन मानिए वो काम नहीं होगा. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जब सब सोच रहे हैं नहीं होगा और आप ये सोच रहे हो कि उसको कैसे किया जा सकता है. अब ये किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता. ये आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लर्न करते हो. मैम, अगर ये मेरे को नहीं पढ़ाया गया तो मैं कभी नहीं पढ़ सकता. बिल्कुल आप इनको सीख सकते हो. दीज आर द स्किल्स विच कैन ऑलवेज बी लर्न. सोशल इंटेलिजेंस, आप किसी भी गैदरिंग में किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप उसमें कितने कंफर्टेबल हो, या आप लोगों को कितना कंफर्टेबल कर पाते हो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनेट स्किल दैट यू मस्ट नो. नोवल एंड अडेप्टिव थिंकिंग. अगेन, आप कभी सोचा था कि हम कहीं पर होंगे जहां पर विल बी स्टैंडिंग देयर एंड वी वांट टू हायर अ कैब, एंड देन we really know what all cabs are available in the nearby premises, how long will it take to reach to you, and how much will be the fare. We never thought. लेकिन किसी ने तो ये आइडिया सोचा था और इसको इम्प्लीमेंट किया. तो नए आइडियाज को सोचना और उनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में काम करना. क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस, ये तो आज के मेरे को ऐसा लगता है कि जितने लोग भी जॉब करते हैं, जितने पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, वो बिल्कुल अग्री करेंगे कि क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस इज रियली वे. आप दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर पाओ और दूसरे कल्चर के लोगों को अपने में भी मिंगल कर पाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाली स्किल्स आप में होनी ही चाहिए और आपको पता ही होनी चाहिए. कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कि कैसे आप समझ पा रहे हो कि डेटा क्या कर रहा है. आज की डेट में एवरीथिंग इज डेटा. डेटा के ऊपर बहुत बात होती है, राइट? अभी आज ही जैसे कोई इलेक्शन हुआ है तो बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स जो है वो एग्जिट पोल के थ्रू प्रिडिक्ट किए जाते हैं. कंपनी आज लॉन्च हुई है और 5 साल के बारे में बताया जाता है कि कंपनी ऐसा कर लेगी. कौन कर रहा है ये? कहाँ से आ रहा है ये डेटा? तो ये डेटा जो है, और आपके आसपास भी. अभी मैं एक शो देख रही थी जिसमें बता रहे थे कि 1 to 4 o'clock वो जो सोनी टीवी है वो सिर्फ हाउस वाइफ को ही टारगेट करता है. ऐसे एपिसोड्स दिखाता है जहाँ पे इमोशनल ड्रामा ज्यादा हो. रीजन बीइंग कि उस टाइम पे मैक्सिमम वाइफ्स देखती हैं और उनका थोड़ा फ्री टाइम होता है, उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है. वेरी गुड थिंकिंग. आपको पता है आपका एंड टारगेट क्या है, आपको पता है आप किसको टारगेट कर रहे हो और आप उसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हो. तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देन मीडिया लिटरेसी एंड कंटेंट आउटरीच. आज की डेट में एवरीथिंग इज अबाउट सोशल मीडिया. आप सुबह से लेके शाम तक जब तक सोते नहीं हो तब तक सोशल मीडिया की ही बात हो रही है. अब उधर आपको किस तरह से बिहेव करना है,
कहाँ उसका कंटेंट कैसे लिखना है, आपको कोई मैसेज लिखना है तो कैसे लिखना है, आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हो तो कैसे रखोगे। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी चाहिए और ये कभी भी सीखी जा सकती है। देन यस, नेक्स्ट इज ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी। आप एक कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैम मुझे इंजीनियरिंग तो करनी है लेकिन मुझे आर्ट भी बहुत अच्छा लगता है मैम, आई रियली लव डूइंग आर्ट, आई रियली लव ड्राइंग पिक्चर्स, तो मैम मैं क्या करूं, मतलब आई रियली वांट टू डू दैट। बिल्कुल हम आज बच्चों को बिल्कुल एनकरेज करते हैं। वी टेल पेरेंट्स दैट डोंट टेल देम दैट यू हैव टू जस्ट स्टडी स्टडी एंड स्टडी, एंड थैंकफुली पेरेंट्स की थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल चेंज हुई है। वो बिल्कुल आज के डेट में मैं देखती हूँ मदर्स आर टेकिंग टाइम टू टेक देयर चिल्ड्रन फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देयर इज वन माय फ्रेंड हु टेक्स हर डॉटर एवरीवेयर, शी इज अ वेरी गुड डांसर, जहां पर कोई डांस शो ऑर्गेनाइज होता है उसको भरना, उधर अपनी बेटी को लेके जाना, दिस इज रियली रियली ग्रेट। डिजाइन थिंकिंग, आपने कभी सोचा था कि आप अपने दिमाग में कोई डिजाइन सोच रहे हो और उस डिजाइन को आप इम्प्लीमेंट भी कर दो, तो आप उस जो सोच रहे हो वो सोच भी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसको एज इट इज बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट, सपोज आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपने कल कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है और आपको डेटा चाहिए, आपने डेटा डाला कि एनवायरमेंट, आपको पता है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स ऑन एनवायरमेंट विल कम, आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा डेटा रेलेवेंट है, आपको चूज करना है, आपको वो आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा डेटा कब चूज करना है और उससे आपको अपनी प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है। वर्चुअल कोलैबोरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज देखिए आप हम सब जुड़े हैं वर्चुअली, शायद आप में से कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ हरियाणा में हैं, कुछ मैं देख रही हूँ सिद्धार्थ तो यूएस में बैठा है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में बैठे हैं, आज सब लोग जो है आज इस वेबिनार में आए हैं। This is virtual. We all are collaborating virtually, and we are there on a platform. And thank God to technology that it is now possible, right? और इन सब बातों का what is it that I'm trying to draw? What I'm trying to tell you is that these all things, yes, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई important नहीं है, ना ही मैं ऐसा पेरेंट्स को कह रही हूँ ना स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द की ingredient which will really give you a job, but your promotion, your upward achievement, it all depends on other skills. So the profile is very very important. आपकी उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप क्या करते हो, आजकल तो MUNs और कितनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो, राइट? साइंस फेयर, आप उन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सोशल इनिशिएटिव्स, कहीं पर कुछ हो रहा है, कोई कहीं पर ग्रीन प्लांटेशन का ड्राइव चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, राइट? एंड दिस ऑल विल हेल्प इन बिल्डिंग योर प्रोफाइल। एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जहां पर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज से आप आते हैं या आप उनकी कंट्री में जाते हो, तो यू गेट अ चांस टू स्टे इन देयर हाउस एंड सी हाउ दे रियली लिव, दे लर्न योर कल्चर, यू लर्न देयर्स। और कभी कभी इसलिए भी जरूरी होता है कि व्हेन यू सी अदर्स कल्चर्स देन यू अप्रिशिएट योर्स, तो ये भी जरूरी है, आप तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब आप दूसरी चीजों को देखोगे, राइट? क्विज, इसमें हमें बिल्कुल अपने बच्चों को प्रिपेयर, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आज सुबह मैं उठी और यार कोई काम नहीं, चलो क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं हो सकता। क्विज के लिए मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई नो द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड विल बी वेरी डिफिकल्ट, आई रियली नीड टू हेल्प माई सेल्फ, आई रियली नीड टू लर्न दो स्किल्स। सो yes, quiz is very important. Olympiads, yes, you are competing with the best. आपको भी पता है कि जो बच्चे ओलंपियाड दे रहे हैं वो ऑलरेडी अपनी फील्ड में बेस्ट हैं, और उसके बावजूद वो ओलंपियाड दे रहे हैं, तो आपका कंपटीशन उनके साथ है, यू आर कंपीटिंग विद द बेस्ट। वहां पर आप कैसे बिहेव करते हो, वहां पर आप कैसे अपने स्किल्स को दिखाते हो, उस टाइम में आप कैसे रहते हो, उस टाइम में आप किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकेडमिक सर्टिफिकेशंस, बिल्कुल आपके एक्सीलेंस अवार्ड्स, ये सब आपके प्रोफाइल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, आपके प्रोफाइल को ये बिल्कुल पॉलिश कर देते हैं। When I was a student like you, we had only 3 fields: science, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। साइंस ले लिए तो आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे, कॉमर्स ले लिया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, चलो आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, ह्यूमैनिटीज ले लिया तो पेरेंट्स सीधे कहते थे लड़की है तो शादी कर देंगे, लड़का है तो दुकान खोल देंगे, कुछ और था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कुछ और एग्जिस्ट भी करता है। और मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हम हैप्पी
जॉनरा को बिलोंग नहीं करते हैं, वी आर वेरी हैप्पी पीपल, क्योंकि हमने कुछ ऐसी स्किल्स सीखी हैं जो आज के बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, और हमारे को अपनी फैमिलीज में वो ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से सीखी हैं, राइट। लेकिन यस, वी डिडंट नो अबाउट द ऑप्शंस। हमारे लिए हमारे मेंटोर्स कौन थे? हमारे पेरेंट्स। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो वो बता देंगे कि ऐसा कुछ करो, नहीं है तो वो पड़ोस के अंकल का बेटा ये कर रहा है, वो साइकिल रिक्शा वाले का बच्चा ये कर रहा है, तुम ऐसे ही बनोगे, और जिसका अच्छा बच्चे कुछ अच्छा कर रहा है तुम ऐसा भी बन सकते हो। लेकिन आज, can you even imagine? You have hundreds of options for you. Like in science and technology, you will agree for these fields, some of the fields like merchant navy, ये शुरू से ही था, engineering, aviation, computer application 20 साल पहले से ही आया है, right? 20 साल से ही आया है, architecture। लेकिन जो बिल्कुल न्यू है, ethical hacking। Can you think of something कि आप कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आप अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दे रहे हो? आजकल तो एडवर्टीजमेंट आ रही है, बिल्कुल अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा आपकी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में एथिकल हैकर्स की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 2 लाख रुपीज पर मंथ है। ऐसी भी जॉब्स हैं, राइट। फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन को टेक्नोलॉजी से ज्वाइन कर दिया। आप बजाय इसके कि आप अपनी मॉडल को बताओ कि आप ये वाला अप्रैल पहनो और दिखाओ कैसी लग रही हो, टेक्नोलॉजी उसको उस अप्रैल में दिखा देती है कि देखो दिस इज व्हाट इज द आउटकम, दिस इज हाउ शी विल लुक। आपको अपना हेयर कट करा के नहीं बताना है कि मैं तो अब जोकर लग रहा हूँ, क्या करूँ, 3 महीने ऐसी हेयर कट के साथ रहूंगा, अब मैं क्या करूं, कैप पहन नहीं सकता, अब मुझे ऐसे ही रहना है। बिल्कुल नहीं, आपको वो हेयर कट बिल्कुल दिखा दिया जाएगा, देखो आप ऐसे लगोगे, आपके ऊपर ये हेयर कलर ऐसा लगेगा। तो फैशन को टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मिक्स कर दिया। सोचो, मतलब इफ यू आर इनटू फैशन, यस, you can really establish yourself into fashion technology also. Yes, research and data trendings are physical sciences, actuarial sciences, mathematics and statistics, food and agriculture, life sciences, और emerging एनवायरमेंटल साइंस। कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी कंपनीज हैं जो एनवायरमेंटल उस पे ग्लोबल वार्मिंग पे वर्क कर रही है, और उन्हें ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे लोग चाहिए जो लाइक माइंडेड हो और उनके साथ वर्क कर सके। डेटा माइनिंग, एज आई टोल्ड यू, डेटा इज एवरीथिंग। अगर आप डेटा के ट्रेंड्स को समझ सकते हो, अगर यू नो हाउ टू प्ले विद डेटा, आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पर्सन हो। दिस इज अ न्यू एज करियर एंड पीपल आर रियली डूइंग वेरी वेल इन दिस। डिजाइन एंड इनोवेशन, कभी सोचा था? मतलब मेरे टाइम पर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि डिजाइन और इनोवेशन में भी हम कुछ कर सकते हैं। ट्रेंडिंग ट्रेंड्स आर आर्किटेक्चर, डिजाइन, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, यूआई डिजाइन, यूएक्स डिजाइन। 10 साल पहले नहीं थे ये यूआई यूएक्स, अभी आए हैं, यूजर इंटरफेस। और न्यू एज इमेज कंसल्टेंसी, कितनी सारी विमेन है, आई हैव सीन देम, दे आर इमेज कंसल्टेंट्स, दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स एंड नाउ दे आर हेल्पिंग अदर विमेन टू बिकम फैंटास्टिक, right? They change, you have to change your image, and then you see yourself what you are. Design thinking, as I told you, you think of the design and then you say, okay, my design is creative. Then this is really very, very important, how you think. Yes, healthness and fitness, इसके बारे में तो देखिए, आफ्टर कोविड वी ऑल वांट टू बी हेल्दी। देखो, जिम तो सबने ज्वाइन किया है, कितने लोग जाते हैं दैट्स अ डिफरेंट इशू, उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने ज्वाइन किया, एक अंदर से सेटिस्फेक्शन है, ज्वाइन तो कर रखा है। अगले वीक से पक्का, इस वीक फेस्टिवल्स हैं, मिठाई विठाई खा लेते हैं, अगले वीक से पक्का। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं हेल्थ की बात कर रहे हैं, right? So yes, earlier there used to be just medicine, nutrition and dietitians, allied medicine, right? Genetics. अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स, गूगल ने बोला कि आपके आईज का स्कैन होगा और आपका पूरा का पूरा स्कैन निकल आएगा, आपको एमआरआई कराने की जरूरत नहीं। आपको ये सब क्या हो रहा है? मतलब हम टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इतनी सारी फील्ड्स हो रही हैं, हम बच्चे को कह ही नहीं सकते कि तुमने साइंस लिया तो तुम डॉक्टर नहीं हो तो करियर जीरो है। नहीं, आप कुछ भी बन सकते हो। फिटनेस एक्सपर्ट, सलमान खान का जो एक्सपर्ट है, ही इज चार्जिंग 5 लाख रुपीज पर मंथ। इमेजिन, आप अपनी बॉडी बनाते हो, आप दिखाते हो कि देखो हम इतना कुछ कर रहे हैं और आप अर्न कर रहे हो। तो आज की डेट में हम बच्चों को कैसे कह सकते हैं, या हम कैसे बोलें कि इसमें कोई स्कोप नहीं है? दे स्कोप एवरीवेयर। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू अवेयर ऑफ दोस ट्रेंड्स, दोस स्कोप्स, दोस फील्ड्स। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, कहाँ पहले सोचते थे कि बस शादी करने के लायक रह गए, कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। आज आप सोशल सर्विस में जा सकते हो, लॉ, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आर्कियोलॉजी, सबसे अच्छा इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। आज ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दूसरी कंपनी में जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, दे गो एंड दे रियली डू कोलैबोरेशन विद दैट कंपनी,
They represent the company. They know that, the techniques that are required to really mingle with them, right? Or instructional designs. मेरी कंपनी की इंस्ट्रक्शंस है, आई वांट मेंटोर क्रिश एवरीवेयर, मेरा कोलैबोरेशन हो रहा है, हम कोलैबोरेट करके ऐसा क्या बना सकते हैं, राइट? इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मीडिया, हॉस्पिटैलिटी एंड आर्ट्स, कंटेंट राइटिंग, इमर्जिंग फील्ड, अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग है कंटेंट राइटर. और you'll be surprised to know कि बच्चे जो हैं वो 9th 10th क्लास से ही कंटेंट राइटिंग शुरू कर देते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स के खुद कंटेंट राइट कर रहे हैं. एंड फ्रॉम वेयर दैट इज कमिंग? क्रिएटिविटी, राइट? पब्लिक रिलेशंस, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, ट्रेंडिंग. और मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के बाद तो ये बिल्कुल ट्रेंडिंग है ही है. हम अपने बच्चों को कहते हैं और कुछ करे ना करे, एक ऐसी शादी साल में करा दियो बस काफी है, बाकी दिन पर कमाने की जरूरत नहीं है, बाकी मजे करो, कोई बात नहीं, गोल्फ खेलो, राइट? एक एक ऐसा क्लाइंट मिलना चाहिए बस, राइट? लेकिन उसके मतलब कितना डिफरेंट सोच है, राइट? देन culinary arts, these are very very important. ओके, कुछ चीजें हैं जो मैं कहूंगी कि चेंज नहीं हुई हैं, जैसे जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, सिविल लाइंस. इनके लिए आज भी जैसे रूल्स सेट थे वैसे ही है. ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन मतलब इनके कुछ रूल्स चेंज हो गए. आज भी इनके लिए स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर द मेन डिसाइडिंग फैक्टर. जो इनके लिए प्रिपेयर कर रहा है उन्हें पता है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है. ठीक है, बिजनेस एंड कॉमर्स, थोड़ा सा कॉमर्स की फील्ड का भी लेते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, ऑपरेशंस एंड सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलवाऊंगी और मैं बताऊंगी कि कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट. आप कोई भी कंपनी आती है उससे सबसे पहले पूछा जाता है, सर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं कि अपनी कंपनी के लिए? एक मिनट, वो क्या है सर? वर्ड ऑफ माउथ से ठीक है, आपका काम ठीक है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? These are those people who really do, they really do work for you. They really make your presence known to people on social media. Sports management. अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैम वर्ल्ड कप होता है 5 साल में एक बार, अब तो फिर स्पोर्ट्स का क्या रह गया? अरे आईपीएल राउंड द ईयर हो रहा है, कबड्डी राउंड द ईयर हो रही है, एक लीग खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, राइट? और कितनी सारी चीजें जो इन्वॉल्व हैं, कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो कहाँ पर होगी, उसका शेड्यूल क्या रहेगा, कौन कौन से प्लेयर्स होंगे, उनके रहने की क्या जगह हो, कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं. दैट्स टोटल अ डिफरेंट फील्ड. वी कॉल इट एज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट हो रही है उसके लिए. So this is what I really wanted to show you, that how the future is really changing, how the career paths are really changing. अब जब मैम इतनी सारी ऑप्शंस हैं तो हमें एज अ पेरेंट कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चे के लिए क्या है? मुझे एज अ स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए क्या है? या तो यही है कि मैम मैं एक एक फील्ड को करूं, उसमें बोलूं नहीं मैं इसमें फेल हो गया, मेरे को इस मजा नहीं आया, अब मैं चेंज करूं. मैम ना ही तो इतना टाइम है ना इतना पैसे हैं, तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, देखिए हमने मेंटोर क्रिश में, एज आई टोल्ड यू, टेक्नोलॉजी इज देयर. इधर आप उससे डर जाओ, और दूसरा आप उसको लेवरेज करो ताकि वो आपके लिए काम करे. ठीक है, हमने मेंटोर क्रिश में क्या किया, हमने उस टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया. हम स्टूडेंट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं. साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि हम जो इस टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स की 5 डिफरेंट कैपेसिटीज या डिफरेंट चीजों पे वर्क करते हैं. लाइक हमें पता लगता है कि what type of personality the student has, what is his or her aptitude, किस चीज में उसका बिल्कुल बेंड ऑफ माइंड उसमें चल रहा है, उसका इमोशनल क्वोशंट क्या है, तो वो एम्पैथाइज कर पाता है कि नहीं, स्टैंड अलोन रहता है, ठीक है, बहुत जल्दी स्केर्ड हो जाता है, गिव अप वाला एटीट्यूड है. इंटरेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके इंटरेस्ट की फील्ड्स क्या है? मतलब इसमें हमने ऑलमोस्ट 114 फील्ड्स को ऐड किया है. 114 फील्ड्स में से आप हमें पता लगता है कि बच्चा किस फील्ड में, आने वाली जो फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स है हमने उसको भी ऐड किया है ताकि हमें पता लगे कि बच्चा जो है किस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है. एंड देन योर ओरिएंटेशन स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. यकीन मानिए आज व्हेन आई एम वर्किंग, माय ओरिएंटेशन स्टाइल इज रियली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ओरिएंटेशन स्टाइल ऑल्सो. आप टीम में काम कर सकते हैं, आप अकेले काम करने में खुश रहते हैं, आप किस तरह का काम आपको अच्छा लगता है,
right? So these things are really, really important. And this test really helps us to know the student well. अब हमने ये टेस्ट कर लिया, हमें स्टूडेंट के बारे में पता लग गया, हमें पता लग गया स्टूडेंट का पर्सनालिटी कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, उसका ओरिएंटेशन स्टाइल कैसा है। फिर उसके बाद हम वर्क करते हैं स्टूडेंट पे। हम देखते हैं कि स्टूडेंट के लिए क्या ठीक है, उसके ओरिएंटेशन स्टाइल से वो किस टाइप की फील्ड में जा सकता है, उसके एप्टीट्यूड से उसका इंटरेस्ट किसमें, उसका इंटरेस्ट के हिसाब से उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रीम्स ओपन हो गई हैं, और उसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। बच्चा बहुत जल्दी गिव अप करता है, उसको बहुत जल्दी बुरा लगता है, टची है, कुछ कहो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मेरे बात बेकार है, ठीक है। तो हम पेरेंट को बोलते हैं कि ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं कीजिए, अब विल टेल यू अ वे हाउ टू, एंड वी वर्क विद द स्टूडेंट आल्सो, वी वर्क विद द चाइल्ड आल्सो कि इट्स ओके, रिजेक्शन इज नॉट रिजेक्शन फॉर यू, इट इज द रिजेक्शन ऑफ योर आइडिया, जस्ट टेक इट, इट्स ओके, नॉट एवरीबody will accept your ideas. Why you're taking rejection to your heart? Why do you think if somebody is saying no, it is no to your proposal, no to your idea, not no to you? And when they understand this difference, life really becomes easy, right? So what we do is, after we have this test, after we know the student, we start working with the students. We really sit with them, we tell them, okay, these are your positive areas, these are your strengths, and these are your weaknesses. Okay, strengths, very good, you have all those strengths, excellent. These are your weak areas, let's work on them. Okay, so we start working on the weak areas, and student really shows a lot of improvement. Now I will share you one story. One of my student, Siddharth, he's there with us also. Siddharth, he came to me around 8 or 9 years back. So he came to me, and after throughout his 12th class, he was a very good student. He dropped out and he said, ma'am, I will prepare for engineering. He started preparing for engineering, and during his preparation only, there was a lot of pressure that Siddharth do computer engineering. अब जो ट्रेंड में है, पेरेंट्स भी तो चाहेंगे ना हमारा बच्चा अपडेटेड रहे। अब बच्चा कह रहा है नहीं नहीं, कंप्यूटर इज नॉट समथिंग दैट आई कैन रियली डू, मुझे पागलों की तरह स्क्रीन पर बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, मैं कोडिंग नहीं कर सकता। अगर कोडिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, कोडिंग तो करनी पड़ेगी, ये तो बिल्कुल emerging field है। Then he came to us, and we did a psychometric test for him, and I realized that yes, he has a technical mind, but he is more into safety, he is more into protocol, his administrative style is more into what the rules and regulations. It is really very important to him to find or to adhere with the rules. Yes, he likes creativity, but he does not like surprises. Everything needs to be planned, सब कुछ पहले से ही कुछ कुछ किया होना चाहिए। And I was like, okay, I had a word with his parents and told them कि देखो engineering तो ये करेगा, लेकिन my suggestion is कि इसको fire engineering में डाल दो, वहां पर ये मतलब वो बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, बताएगा कि नॉर्म्स क्या हैं, और that will be really good. Immediate thing that I got from his parents was, मैम आर यू रियली आउट ऑफ योर माइंड, जो ट्रेंडिंग फील्ड है, हमारा बच्चा इतना प्रॉमिसिंग है, पढ़ाई में इतना अच्छा है, हम उसको छोड़ के आपके कहने पे फायर में डाल दे, क्या फ्यूचर रह जाएगा इसका? What will he do in his life? He'll not be able to do anything, he'll not be able to achieve anything. Then I told them कि it's not the case, just look at his passion. आप मेरे कहने पर एक बार इसका प्लीज भर दीजिए, ठीक है। नागपुर में इसने अप्लाई किया, इसका इंजीनियरिंग में हो भी गया, और इसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी हो गया, दोनों जगह हो गया। अब फिर से प्रॉब्लम कि भैया नीलम मैम ये तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को प्रॉमिस कर दिया कि तेरी बात मानी जाएगी, पेरेंट्स को प्रॉमिस किया अरे आप मानो तो सही, आपकी बात मानी जाएगी। अब दोनों तरह से काउंसलर की जान छूटी। कैसे छूटी? वो तो पेरेंट्स भी कहते हैं आपने बोला था, हमने भरवा दिया, अब ये फायर में नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल से उनको कन्विंस किया कि प्लीज एक बार इसको करने दो, ठीक है, एक बार इसको इसके मन की करने दो, इसका स्टाइल बहुत डिफरेंट है, ही विल डू वंडर्स। समहाउ वो कन्विंस्ड भी हो गए, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि सिद्धार्थ ने बिल्कुल टॉपर रहा उस यूनिवर्सिटी का। He scored 10 plus in all, or 10 plus credits. He did wonderfully well. और उसके बाद जब ये मेरे पास दोबारा आया तो इसने बोला नीलम मैम अब मुझे फायर में ही कुछ मास्टर्स करनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंडिया में अभी ऐसी ऑप्शंस नहीं है कि आप सेफ्टी में जा सको। तो मैंने इसको बताया कि सिद्धार्थ ये वाली ऑप्शंस अभी इंडिया में नहीं है, और इसको जॉब ऑफर हुई है, यहाँ बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। फिर से वही पंगा, पेरेंट्स नीलम मैम आपकी पहले बात मान ली, अब तो जॉब है, घर मिल गया इसको गवर्नमेंट का, क्या चाहिए क्या चाहिए इसको, 2 साल में इसके बच्चे हो जाएंगे, फैमिली सेटल्ड है, क्या चाहिए इसको लाइफ में? अब फिर आप उनसे माथा पच्ची करो, सर मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में सिर्फ अप्लाई करने दीजिए,
हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो मैं प्रॉमिस करती हूँ वहां पे भी इसका सिलेक्शन हो गया। आईएल्स इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, सब कुछ सिलेक्शन हो गया। अब आ गया मेरे पीछे नीलम मैम। अब मैं फिर इसको समझाया कि सिद्धार्थ 2 साल रुक जा, पढ़ाई कर, नौकरी कर, थोड़े पैसे इकट्ठे कर। और ये इतना अच्छा बच्चा है, इसने मेरी बात मानी। 2 साल बाद फिर अप्लाई किया, फिर सिलेक्शन हो गया। और अब इसके पास क्या था, अब मैं अपने पैसे खर्चूंगा नीलम मैम, मैं वहां जाके जॉब कर लूंगा। आई विल नॉट पुट टू मच ऑफ प्रेशर ऑन माई पेरेंट्स, दैट्स अ प्रॉमिस। और मैं मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में भी ये एज अ टॉपर निकला है, और अभी रिसेंटली इसको जॉब मिली है और इसने ज्वाइन किया है। आज मैंने रिक्वेस्ट, आज इसका एक पेपर भी है, मैंने इसको रिक्वेस्ट किया है सुबह की, बहुत जल्दी, आई थिंक सुबह के अभी 5:30 ही बज रहे हैं। मैंने इसको 4 साढ़े 4 बजे फोन कर दिया था कि सिद्धार्थ उठ जाओगे तो आज एक बार एक मोटिवेशन हो जाता है बच्चों के लिए, आप आ जाना। सिद्धार्थ, आई एम गिविंग, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, thank you, ma'am. I feel grateful to Neela ma'am and Mentor Krish for this opportunity to share my story as well. Really lucky that I did fire protection engineering back in my undergraduate and my master's as well. And yeah, I don't know what more else to say, but yes, it was like a very unique field, very niche. Lucky to do that as my master's. As you might have seen my photograph, which was appearing earlier, that was the uniform I used to don for 4 years while I was doing my bachelor's. And I worked for 2.5 years in an oil refinery. It was everything good. They took good care of me, but I really wanted to pursue my master's as well. I graduated with silver medal in my bachelor's degree, and then I went on to do my master's for the 2 years of a master's in the United States in University of Maryland, which is like one of the oldest program in the world. There are very few universities giving this program, and I really wanted to get into one. For the 2 years I was here, I think both of the years I was in the dean's list for scoring the most marks in my discipline in my degree. And yes, and recently I got like multiple jobs offer by the end of my graduate degree, and I had to choose an option. And currently I'm in North Carolina, in a very beautiful city of Charlotte, which is like up and upcoming and very young population here. And it's great to be part of the engineering and architecture firms and doing what I really love to do. And the tailored guidance, mentorship that I got from Neelam ma'am in passing my exams, in getting here, and even scoring well so that I even get opportunities here like teaching assistantship was really helpful. That was how I was able to support myself during my studies here and do great in my academic areas as well. So yes, I am humbled and greatly honored to be here to speak in front of all of you. And thank you, Neil ma'am and Mentor Krish, for all their guidance. Thank you, Siddharth. Thank you so much. And thank you so much for taking out time. And yes, as I told you all today, it's Siddharth, which exam you're having today? It's professional of engineering and practice of engineering exam that you give after you become a fire protection engineer. You can give that exam and you're basically a sealing authority if you make any plans like I do for fire protection engineering. So Wow. you get that position once you've passed that exam. Very good. Wish you all the very best. I really wish you are my rocking star. I know you're going to rock. So you can just log off. You told me that you are preparing last minute preparation you are doing for the exam. So all the very best. And I really wish from everybody that yes, you do well and you Talk rock. with your Thank you mother. very much. Thank you. Thank you. Siddharth. Thank you. Thank you, ma'am. Bye-bye. Bye. Okay, so now moving on to my another student whom I mentored is, my coach also. Right now, first I was his coach and these days he's my coach. This is Rahul Gujral. And, same thing, 8 years back, he told me that he did his graduation from commerce, did very well, was a bright student and was very happy also. He got a job offer. He was on the like 7th word. Oh मैम, अब तो जॉब मिल गई है, अब लाइफ सेट है, सब कुछ पता है मुझे क्या करना है, गाड़ी लेनी है, मजे करने हैं, ये वो ठीक है। जॉब शुरू करी, 2 महीने बाद ही वापस आ गया। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मैम, मैं ये डेबिट क्रेडिट के लिए नहीं बनाऊं प्लीज। क्या बात कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब है, पैसे मिल रहे हैं, तेरी लाइफ इतनी सेट है। कहता मैम किसने कहा सेट है, मुझे नहीं करनी है। एंड आई वाज लाइक प्लीज राहुल, डोंट से लाइक दिस। देखो तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है, तुमने
भाई तुमने 9th क्लास में 10th क्लास में तुमने डिसाइड किया, तुमने कॉमर्स ली, तुमने ग्रेजुएशन करी है, अब तुम कह रहे हो तुम्हें कॉमर्स नहीं करनी है, और वो भी इस एज पे जब तुम्हारी जॉब आ गई है. व्हाट विल आई टेल योर पेरेंट्स? एंड ही वाज लाइक, नीलम मैम बिल्कुल नहीं करनी है प्लीज. इसका भी साइकोमेट्रिक टेस्ट किया, एंड आई वाज रियली अमेज्ड टू सी कि ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी के लिए बना था. और इसकी क्रिएटिव थिंकिंग जनरली बच्चों की 6-7 होती है, इसकी कंसिस्टेंटली 10 आ रही थी. इसके लिए करियर ऑप्शंस आई कि भैया डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकता है. मैंने राहुल को बुलाया, मैंने कहा राहुल एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है. कहता मैम पहले बुरी बता दो, क्योंकि अच्छी तो मैं सुन ही लूंगा, पहले बुरी का खत्म करो काम. मैंने कहा बुरी खबर ये है कि तुम्हें कुछ नया सीखना पड़ेगा. ही वॉज लाइक ओके. अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर यह है कि जो तुम करना चाहते हो उसमें कुछ कर लोगे, कॉमर्स से छुटकारा मिल सकता है. ही इज सच अ वंडरफुल चाइल्ड. इसने बिल्कुल दूसरी बार नहीं सोचा. ये बात अलग है कि मुझे इसके मम्मी पापा से बहुत लड़ाई झगड़े करने पड़े, बहुत सारी कॉल्स भी आई, नीलम मैम आप क्या उसकी बर्बादी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? उसको अकल देने की जगह उसको बेवकूफ बना के कह रहे हो कि कुछ भी कर ले. He took admission to digital marketing. He did pretty well, and you'll be surprised to know आज इसने गोटेक नाम की कंपनी का ये ऑनर है. और मेंटोर क्रिश को गोटेक जो है वो पूरी तरह से हमारा सोशल मीडिया बिल्कुल यही देखता है. डिजिटल मार्केटर्स यही है, मेरी वेबसाइट इसने बनाई है, और पूरा हैंड होल्डिंग कर रहा है. और मैं इसे हमेशा कहती हूँ, राहुल मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था आई विल बी डूइंग योर हैंड होल्डिंग. आई नेवर थॉट कि मेरा स्टूडेंट आएगा और एक टाइम पे मेरी हैंड होल्डिंग करके मुझे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा. सो थैंक यू वेरी मच राहुल, एंड यू आर रियली अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. थोड़ा सा अपने को अनम्यूट करके अपनी जर्नी बताओ. Yeah, hi, good evening, everyone. Hope you are all doing good. So I'm honored to be here with you for this webinar about future of careers. And my name is Rahul Gujral, and I am a digital marketer. I have personally experienced how career coaching has changed my life, and I am excited to tell you about my journey also. So I have finished my graduation in 2017, and after that, I went for two courses. Basically, one is for accountancy and one is for banking and finance. First, I did by accountancy and I got a job. And after 2 months, as Neelam ma'am said, that I switched. And then I tried banking and finance, but felt lost because I was not sure what I truly wanted to be. So this is a common problem in our family. They often push us, go for this field, go for this career, and do engineering. There were so many options, and it was a tough time for me also at that time. Then I met Neelam ma'am, a fantastic career coach. With the guidance of Mentor Krish, I discovered my strengths and passions. I set goals for myself. Neelam ma'am supported me through all the challenges on the professional stage. Then she suggested me go for a psychometric test, and I went for a psychometric test, and I was good at technical things, numbers, playing with the numbers. I was really good playing with the numbers. And I was doing good in all other things like graphic designing, creative thinking, and technical things. So I decided to pursue a career in digital marketing. So today, as a businessman, I have started my company 5 years ago as GoTech Digi. I am a co-founder. There is one more partner, Vivek Tanwar, is with me, and he is operating in India. And right now, from last 6 months, I am in Dubai and settling here. What are the career opportunities? What are the digital marketing trends in Dubai? Because as you all know that Dubai is one of the biggest cities for the IT sector. And I owe a lot to the mentor Krish. They helped me find my path, challenged me, and genuinely cared about my success. If you are thinking about your career coach, I urge you to reach out to Mentor Krish. Their guidance can make a huge difference in reaching your dreams. Thank you, Neelam ma'am, for your dedication to helping others and for being a source of inspiration to me. Thank you very much. Thank you, Rahul. Thank you. It's so good to see your children, coming and talking about their experiences and sharing and motivating others. I hope that, you all will be motivated by their stories and will do wonders. Yes, Palak, back to you. Thank you, ma'am, for that amazing presentation. You have definitely given us a lot to think about and consider.
Next, it is my privilege to introduce our distinguished speaker, Mrs. Piyush Goyal. Piyush ma'am is an accomplished educator with a wealth of experience spanning over 2 decades in the field of education. Armed with a master's in botany and NET qualification, her expertise and dedication have been instrumental in shaping the academic journey of countless students. Pragati Path is dedicated to providing specialized instruction and mentorship to students, fostering excellence and supporting their personal growth. The tailored education provided to every student ensures that student can flourish and achieve their personal best, equipping them with the skills and knowledge necessary for a successful tomorrow. I would like to request Piyush ma'am to take the stage. Thank you so much, Palak, for this warm welcome, and thank you so much, Neelam, Rahul, and Siddharth. This was so much meaningful till now. And as Palak told, that I am an educationist since last 2 decades. We are running a coaching center by the name Pragati Path, and today I have been assigned duty to explain how to prepare for success. है ना, हम लोग success के लिए कैसे अपने आप को prepare करें. So just let me share my screen, and this will be hardly 10 minutes presentation, and I hope it will be beneficial for each one of you. So, Palak, I hope my screen is visible. Yes, ma'am, it's Thank visible. Yes. Thank you. Great. So how to prepare for your success, है ना? तो topic जो है वो है how to prepare for your success. But before I actually start, I would like to ask a question from each one of you. There must be many parents over here and students as well. तो जो students हैं वो just अपना hand raise करके बता सकते हैं. ये screen के ऊपर दिख रहा है कि हम लोग success के लिए plan कर रहे हैं. मुझे 10 मिनट में बोला गया है कि how part मुझे लेना है. But आपको क्या लगता है? Which one is more important, why or how? I'm looking at the chat box. You can just give your okay. A few of them, why? Okay. Not how? So this upcoming 10 minutes seem to be redundant. Why? A few people are saying how also. Fine. Great. देखिए ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि how और why के अंदर दोनों ही although very important things. हमको why बहुत clear होगा, but if we do not have any guidance, we do not know the path how to do it, will not be able to succeed. But why definitely keeps more importance. क्योंकि why आपका अपना है ना. आज आपको कोई भी काम क्यों करना है, नीलम मैम ने इतने सारे करियर एवेन्यूज बता दिए. साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपको आज की डेट में हेल्प कर पाएगा आपका अपना why ढूंढने में. तो आपका why आपको कोई और नहीं बता पाएगा, how बताने वाले बहुत लोग हो जाएंगे. तो first of all, I would like each one of you, if you are in your career making years, that is in 9th, 10th, 11th or 12th standard, let this why make it clear as early as possible. हम लोगों ने देखा है अपने एकेडमिक करियर्स में, जिन बच्चों का why क्लियर होता है तो वो कंफ्यूजन्स नहीं होते, तो वो अपने करियर को बेटर बिल्ड कर पाते हैं. तो पेरेंट्स को भी मैं यही कहूंगी, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर व्हाट, और इस why को क्लियर करिए कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है. एंड अगेन साइकोमेट्रिक टेस्ट की अभी बात हो रही है, दैट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी, कि आपको वो एक चीज हेल्प कर सकती है. मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हो सकता है स्टूडेंट बहुत क्लियर है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है. कुछ केसेस के अंदर इफ देयर आर कंफ्यूजन, डेफिनेटली दिस टेस्ट में बी वेरी हेल्पफुल. तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेट योर गोल, एटलीस्ट फॉर अपकमिंग 5 years. 5 साल के अंदर आप अपने आप को कैसे देखते हैं. हमारे पास तो जो बच्चे आते हैं हम उनको यही कहते हैं कि एक बहुत ही अपना 1000 शब्दों के अंदर, 2000 शब्दों के अंदर एक लॉन्ग ऐसे लिखो. हाउ डू यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन, कैसे आप अपने आप को देखते हो 5 years डाउन द लाइन. सो दिस गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे कि हाउ टू सेट योर गोल. But again, I would say parents and students sit together, try to set your goal if not yet set. आज के इस सेमिनार की जब हम बात कर रहे हैं कि करियर पाथ अपकमिंग 4-5 years में क्या रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सब्जेक्ट का सिलेक्शन, क्योंकि आजकल कुछ अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वी कैन एंजॉय दो, बट स्टिल जितना जल्दी हम लोग अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन, कि हम लोग जो है ह्यूमैनिटीज में जाना चाह रहे हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं, साइंसेस परस्यू करना चाह रहे हैं. अभी मैम ने इतने अपकमिंग फील्ड्स बताए, कौन सा फील्ड हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, तो उसके हिसाब से एक राइट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द पाथ ऑफ सक्सेस इज व्हाट, जो अभी मैम ने बात की, कि जितना आपका सक्सेस का पाथ के अंदर मेंटोर क्रिश along with Pragati Path can do 100% commitment of hand holding since the beginning till the end.
साइकोमेट्रिक टेस्ट ने आपको बता दिया या आपने अपने आप अपना क्यों निकाला, उसके बाद इंपॉर्टेंट बात होती है कि अब मैं कैसे करूं। तो आप देखिए, चाहे आप, मैं कहती हूँ, एक बॉलीवुड एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, या आज हम लोग राहुल से मिले, राहुल की तरह आप कुछ सोशल मीडिया के फील्ड में करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एकदम नया फील्ड आप जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट एंड ऑफ द डे ये 3 चीजें हैं। वन इज कॉन्सेप्ट, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड इज पैशन, विच विल लीड द पाथ टुवर्ड्स सक्सेस, है ना। आपको एकदम 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, और इस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। इस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब ये है कि व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स विल बी इंक्लूडेड इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को जब मैं पढ़ रहा हूँ, तो कैसे इसकी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में हो, मुझे सब कुछ पता हो, है ना। और उसके बाद में अल्टीमेटली बहुत सारे लोग अपनी नॉलेज को लेकर के बैठे हैं, लेकिन आपका वो पैशन नहीं है, है ना। जैसे राहुल ने बोला, बैंकिंग के अंदर हो सकता है दिस कैन बी अ ड्रीम फॉर समवन, जो कि उसने 1 मिनट में छोड़ दिया क्योंकि पैशन नहीं था। तो सीरियसली स्पीकिंग, यदि लंबी रेस का घोड़ा बनना है और जिंदगी को सफलता से बिताना है ना, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर हमें मजा आना चाहिए। पैशन की बस डेफिनेशन यही है कि आज हम लोग वेबिनार के अंदर बैठे हैं, हम लोग स्पीकर हैं, आप लोग लिसनर हैं, मजा आ रहा है, या फिर जस्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठे हैं। तो आपका पैशन है या नहीं है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देखना है कि क्लासेस में जाने में, लेक्चर अटेंड करने में, जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, या जस्ट आपको लग रहा है कि हाँ इसको मैं करके क्योंकि मैं सफल हो जाऊंगा, मैं कोई 6 डिजिट 7 डिजिट इनकम कमाने लगूंगा इसलिए कर रहा हूं, तो शायद वो पैशन नहीं है। तो फिगर आउट योर पैशन and ultimately plan to succeed. Success is nothing but this is a combined effort of child, parent and guide. हम लोग सब के सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, वी ऑल आर दी शेयर होल्डर्स। एक पर्सन जब सक्सेसफुल होता है तो उसकी सक्सेस के अंदर डेफिनेटली उसका अपना बहुत बड़ा रोल है, बट साथ साथ के अंदर पेरेंट के रोल को और गाइड के रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रोल ऑफ गाइड देखिए, आज के टाइम के अंदर, जैसे अभी नीलम मैम ने भी बहुत सारी बात की, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों के पास में है। राहुल एंड पलक, दे आर आवर स्टूडेंट्स, 20-20, 30-30 साल हमारे छोटे बच्चे, हम उनके गाइड आज कैसे बन सकते हैं ना। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, हमारे बच्चे, हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, दिस जनरेशन इज स्मार्टर इवन देन अस, तो हम उनके गाइड के रोल में कैसे आ सकते हैं। तो अगेन मैं जरूर बात करूंगी, यू मे फाइंड अ लॉट मैनी यूट्यूब वीडियोस, बट गाइड का रोल, जो एक पर्सनल टच है, उसका रोल कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट एज अ गाइड हमारा जो रोल है वो एक करेक्ट नॉलेज ट्रांसफर करने का है। आज आपको जैसे ही नॉलेज के लिए, इफ यू आर सीकिंग फॉर नॉलेज, देयर इज डेफिनेटली लॉट मेनी रिसोर्सेज। आज मैं एक टाइप करती हूँ कि मुझे जीन के ऊपर कुछ डिस्कवरी करनी है, आई जस्ट वांट टू सी अबाउट कि व्हाट आर टीलोमियर्स और व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन जीनिक कंस्ट्रक्शन, तो मेरे को केवल गूगल पे डालना है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ जाने वाली है। लेकिन इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू वांट टू सेव योर टाइम, यू वांट टू गो फॉर द राइट रिसोर्स, तो बहुत बहुत जरूरी है कि आप एक करेक्ट मेंटोर के हाथ में हो, जो आपको ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की अभी मैम ने बात की थी। आप यदि नेट के ऊपर जाते हैं, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि विच इंफॉर्मेशन इज गुड फॉर मी, इज राइट फॉर मी, एंड विच वन इज रिडंडेंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट रिडंडेंट इंफॉर्मेशन दैट बिकम्स इंटरवीनिंग, वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड भी नहीं होने देती। यदि आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज मेरे लिए। और हर एग्जाम की एक अप्रोच नीडेड है। एक 10th क्लास का बच्चा भी सेल पढ़ रहा है, 6th क्लास का बच्चा भी सेल पढ़ रहा है, आईबी बोर्ड का बच्चा भी सेल पढ़ रहा है, और सीबीएसई बोर्ड का भी बच्चा सेल पढ़ रहा है। बट उस सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर जब डिस्कस होता है तो यू वॉन्ट बिलीव कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच इज सो मच नीडेड दैट वन आंसर विच यू आर फाइंडिंग 100% करेक्ट मे बी टेकन ऑल टुगेदर रॉन्ग in different board, different class. So this particular role of guide to give a very focused guidance is very important. And as a guide, whatsoever I have learned in last 2 decades, that if we can give this conducive environment to our student to ask their doubts, and simply if we can encourage them to learn how to learn, सेल्फ रिलायंट है आज का बच्चा, राइट सोर्स हम उनको प्रोवाइड करें, बच्चा खुद लर्न करे, बच्चा अपना डाउट पूछने के अंदर कभी हेजिटेंट ना हो, हमसे बहुत ही एनकरेजिंग वे में हम उससे उसके डाउट्स निकलवा पाए, उसके रेगुलर टेस्ट लेते जाएं और उन टेस्ट को इवैल्यूएशन के साथ में गैप्स को फिल करते जाएं, तो डेफिनेटली ट्रिमेंडस सक्सेस हम सबका वेट कर रही है। वी एट प्रगति पथ एंड मेंटोर क्रिश, हमारी जो कुछ कोर स्ट्रेंथ है, वी बिलीव इन एक्सपर्ट गाइडेंस। बहुत टाइम की कमी है, छोटी सी बात बताऊं, आज 9th 10th के अंदर हम साइंस के बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर के पास में भेज देते हैं। आई एम अ बायो पर्सन, आई एम टेकिंग केमिस्ट्री, आई एम टेकिंग फिजिक्स एज वेल,
ठीक है, I can do, you see, I can deliver my lecture, but that will definitely make some difference if the subject is being taught by experts. So we here believe in expert guidance, we believe in interactive sessions, we believe in comprehensive test plans, thorough evaluation के साथ, and then examination oriented focused approach. And this is from basic to advanced, which is very very core to my heart. हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, इवन आप जो है वो बड़े बड़े प्रोफेशनल से मिलेंगे, एडवांसमेंट की हम बहुत बातें कर रहे हैं, बट फंडामेंटल्स इफ आर पुअर देन यू कैन नेवर हैव ग्रिप ओवर योर सब्जेक्ट. आपका एज अ गाइड आपका रोल होना चाहिए कि बच्चों के फंडामेंटल यदि हमने स्ट्रॉन्ग कर दिए, और वंस बच्चा इज फाइंडिंग द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग, दोस फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, बिलीव मी, every child has capacity and capability to bring it to the advanced level up to any grade. Here are a few screenshots जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्लानिंग इज द कॉन्क्रीट पार्ट हियर एट प्रगति पथ एंड मेंटोर क्रिश. बहुत बच्चों को एडवांस प्लानर दे दिया जाता है, टेस्ट प्लान्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि पेरेंट्स को भी लूप में रखने की. एवरी सिंगल वीक देयर विल बी वीकली टेस्ट, पेरेंट को जो है वो क्लास का हाईएस्ट मार्क और आपके बच्चे का मार्क भेजा जाएगा. वीकली और मंथली रिपोर्ट्स इस तरीके से जनरेट होकर के कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोग्रेस रिव्यू तैयार किया जाएगा. तो दिस वे देयर इज नेवर अ शॉक. Otherwise, what is the lack in our examination system? That exams mostly do occur once in 2 months or maybe once in 1 month. तो जो हमारे gaps होते हैं वो जब तक हमें पता चलता है कि this is the lack, तब तक sometimes time has passed, time has मतलब इतना बीत चुका होता है समय कि उन gaps को fill करने का time ही नहीं होता. तो we believe in filling up those gaps then and there only. So these weekly tests with thorough evaluation, they are helping a lot to child. Role of parent, again I would say this is a very very important role, and nowadays all the parents, they are too aware, we are contributing a lot in the journey of success of our children. तो बहुत important है कि आज हमारा, जैसे मैम ने बताया कि changing trends, तो ये ट्रेंड भी इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं कि पहले जो हम बात करते थे एज अ पेरेंट और एज अ चाइल्ड, हमें कभी कोई एफर्टफुली नहीं सोचना पड़ता था कि हमारे पेरेंट्स को क्या पता है ना. ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स को हम लोगों से बहुत ज्यादा पता होता था, बट आज सोशल मीडिया एक्सपोजर, उन बच्चों की अपनी पर्सनालिटी और जिस तरीके का एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, इतना फोकस्ड अटेंशन, 2 बच्चे घर के अंदर, पहले 10-10 बच्चे हुआ करते थे. तो हम लोगों को आज एज अ पेरेंट अपनी विजडम, अपनी एक पेरेंटहुड को भी शो करने के लिए बहुत जरूरी है कि वी नीड टू एस्टैब्लिश एन एनवायरनमेंट वेयर माय चाइल्ड नोज दैट माय मम्मा, माय डैड, ही अंडरस्टैंड्स मी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट और बच्चों की रिलेशनशिप में वहां आती है जहां हमारे बच्चों को लगने लगता है कि यार आपको नहीं पता, आप नहीं समझते. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज नीलम मैम ने जिस सेमिनार का, जिस वेबिनार का हम हिस्सा बन रहे हैं, हम इस तरीके की टेक्नोलॉजी को, आज नीलम मैम ने बात की थी कि या तो टेक्नोलॉजी से डरते रहो, हम सब उसी दौर का हिस्सा हैं. At the age of 40, 45, 50, it was very, very difficult for us to come on Zoom, to share the screen, to use this multimedia. बहुत मुश्किल हो रही थी. तो हम डर के घर पे बैठ सकते थे, या हम धीरे धीरे अपने बच्चों से ही सीख करके, इधर उधर से सीख करके अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों के सामने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स के फॉर्म के अंदर अपने आप को पोर्ट्रे करें. और दिस इज माय 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस कि एक केवल और केवल बच्चे को जो सफलता दिला सकता है, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके राइट लिविंग की ओर बढ़ा सकता है, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन. और आज के सिनेरियो में आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. दिस शुड डेफिनेटली बी गिवन द प्रायोरिटी. आपके बच्चे का खाना पीना, उसकी हेल्थ, उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज की हैबिट, व्हिच अगेन कैन बी द पार्ट ऑफ fun part of your family. You go for walk all together with your family, exercise आप साथ साथ में करें. वीकेंड्स को, संडे मॉर्निंग को हम लोग जो है वो सिटी पार्क के अंदर, किसी भी पार्क के अंदर जो है वो घूम के एक्सरसाइज का अपना साधन बनाए. तो दिस कैन bring not only physical health but also mental health. Engagement and involvement is the key for a parent to become a successful parent. And last but not the least, there are small yet important tips for the students. बच्चों को तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि आपको, हम लोगों ने सबने कोट सुना है, if we are planning to fail, if we are failing to plan, basically we are planning to fail, है ना. Planning is a very very important part of success. आपको अपना, जैसे 5 years down the line, मैंने बोला, आप अपने आप को विजुअलाइज करिए, आप अपने आप को कैसे देखते हैं. जैसे आप देखते हैं उसके लिए what all is required, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटें. इस साल मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साल में मुझे ये, अभी नीलम मैम ने तो बता दिया, यू नीड टू प्रिपेयर योर प्रोफाइल, यू नीड टू गो फॉर ओलंपियाड, यू नीड टू बी मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट. तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं. तो आपको प्लानिंग करके एक अपनी
डू लिस्ट फॉर डेली टास्क। यदि एक जिस बच्चे की आदत हो गई कि रात को उसको पता है कि अगले दिन सुबह मुझे क्या करना है, और वो टाइम बजटिंग के साथ में यदि आप कर सकते हैं, आपको पता है कि आज मेरे 5 से 8 कहाँ बीतने वाले हैं, 8 से 12 तक मैं क्या करने वाला हूँ, 12 से 4 में मुझे क्या करना है, सीरियसली लाइफ विल बी स्ट्रेस फ्री एंड यू विल बी अचीविंग ऑल योर डिजायर्ड माइलस्टोन्स। ये मैंने बिल्कुल पर्सनली देखा है, बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है, और आई एम 100% श्योर इफ यू कैन प्लान योर डे, डेफिनेटली हाफ ऑफ द बैटल इज वन। और कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट की टू सक्सीड। आपको हर जगह पे 100% प्रेजेंट ही रहना मैं- होगा। आप क्लासेस सोचते हो इरेगुलरली अटेंड करके, इरेगुलरली रेगुलर होकर के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, नहीं हो पाएगा। देन अगेन 24 आवर्स की जो बात है कि once the guide delivers, teachers do deliver their lecture, if you can just revisit those things twice, thrice, as many times as you can within 24 hours, this is scientifically proven that your टेम्पररी मेमोरी एंड योर परमानेंट मेमोरी, जब आप विद इन 24 आवर्स किसी चीज को 2, 3, 4 बार आप उसको ब्रश अप कर लेते हैं, तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, और फिर आपका सारा एफर्ट रिड्यूस हो जाता है। यू विल नेवर फॉरगेट इट। आप कुछ लेसन्स को ये करके देखिए। तो आज अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, हम लोग वी आर गोइंग फॉर लॉट मेनी ट्यूशंस, वी आर गोइंग फॉर स्कूल, वी आर डूइंग पर्सनल टीचिंग कोचिंग एज वेल, बट हम लोगों को वो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है। So you need to plan your self study and in the end come in the role of teacher for yourself. जो आप पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ आप अपना बेस्ट गाइड खुद बनिए, और एक छोटा सा सेशन अपना डेली लीजिए कि आज मैंने क्या पढ़ा, और मेरे पास में एक मेरा बच्चा, मैं पीयूष टीचर एंड मैं पीयूष स्टूडेंट, तो पीयूष टीचर आज पीयूष स्टूडेंट को पढ़ाएगी। तो आपका यदि वो फ्लो बनता है एज अ टीचर, जो भी आपके रोल मॉडल हैं टीचर, आप यू जस्ट प्रिटेंड, यू जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट। आप उसको जो है वो मिमिक करिए और सोचिए कि मेरा वो फेवरेट टीचर मुझे पढ़ा रहा है, तो देन डेफिनेटली यू विल हैव tremendous improvement in your understanding, in your conceptual part. Thank you so much. So in the end, yeah, just one more line कि हम लोग कई बार सुनते हैं इस तरीके के वेबिनार से, बहुत पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, हम लोग बहुत बहुत कंपैशनेट हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, और कई बार compete करने लगते हैं। तो we need not to compete with the world. The only focus once we are here in human world, तो हम लोगों को बस अपने आप से ही अपना बेस्ट वर्जन बनने की जरूरत है। विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट विशेस टू एवरीवन। थैंक यू नीलम मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू पलक, ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am, for your enlightening presentation. It was really an eye-opener and gave us so much to think about. Neela ma'am, you want to say something? Yes. Thank you, Piyush. It was really, really great. Thank you, Rahul. Thanks, everyone. Palak, we have some time. Can we just take 2 or 3 questions? There are people who are asking questions in the chat box. So whosoever has question just can raise their hand. There was a question that Laksh was asking me. I'm just trying to unmute him. Just give me 1 second. Yes. Yes, Laksh. I'm unmuting you. Yes, Laksh. Unmute yourself. Yes. My question is to Mr. Rahul Gujral. Suppose I'm doing engineering and then I do computer engineering, and it is a trend now. So 5 years into it, and then the trend just gets over. So is there chance still that I will be employed for computer engineering even though it's not in need in the world? Yes, Rahul. So yes. So Laksh, I completely understand your concern, but see, there is no certainty in life. Like careers and other aspects are temporary. You should make yourself adaptable enough to face any challenge in the market. Like, did we know that something like AI would emerge in the market and disrupt everything? No, we did not. So just like that, you should be prepare yourself, like after 5 years or after 5 seconds, your role would be changed. So yes, you should like do some research work and like talk like yeah, you should be adaptive that like you should research, do a well plan, like learn, plan, execute your plans, other thing. There is a most major things which you can opt. And yes, after 5 years, if like your interest can be changed also. Like आज जो आपका interest है, your interest is like in another thing. So this would be a possibility also. So just do the research and
there are so many uncertain things. So anything can happen. So just focus on yourself and your other things. Thank you. I hope that answered your question, Laksh. And Laksh, do know one thing कि कोई भी change ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठोगे और सब कुछ change हो गया. कभी नहीं होगा. Change is always gradual, right? AI भी जो आया तो इसकी हम लोगों को बहुत पहले से भनक थी. 2 साल पहले से इसकी बातें हो रही थी. राइट तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सुबह उठे और सब कुछ चेंज हो गया और आपको लग रहा है अरे आप तो बिल्कुल दूसरे ही प्लेनेट पे बैठे हो, अब क्या करूं. राइट जैसे राहुल सर ने बोला और जो हमारी प्रेजेंटेशन भी कह रही है, अपने को बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखिए, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रखिए. I think that answered your question. Yeah, Laksh is showing thumbs up. So yes, his question is answered. Yes, we have Maitreyi. So yes, ma'am, I'm unmuting you. Please ask question. What is your question? Good evening, ma'am. Ma'am, I'm Maitreyi Srivastav. I'm in class 11th and I'm from PCM background. My question is to you, ma'am. I recently got to know about the study abroad programs for undergraduate students and I'm really interested in it. But as you mentioned, we had to start building our profile and our CVs right from class 9. So should I even try it to build my profile or is it just too late for me now? Maitreyi, there is never too late kind of thing in our life. Any day, any second can be your starting day, your starting second. So 11th class, yes, you might have missed 2 years, but that does not mean that you're missing all the opportunities. You please share your profile with me. Summer breaks are coming. This is the best time that you can really utilize and work on your profile. So yes, we have good 2 years. We'll work on your profile. We'll really polish your profile. And there is nothing is really late. There are many students who come in class 12 and they tell me, Neelam ma'am, I was really hoping to go to some Indian university, but now I've changed my mind. I really want to go to this particular university because my cousin is doing this course from there and she's very happy. Things are really great. So, you always have new opportunities, new things, and you can always learn things. So yes, we can work on your profile. There's never nothing like too late. Every day can be a starting day. So yes, we'll start your journey from there. We'll definitely help you. Mentor Krish will help you in choosing the options. We'll help you in utilizing your days, your holidays, and we'll definitely help you. Don't worry. I hope I've answered your question. Maitreyi? Yes, ma'am. Thank you so much. Okay. Thanks. Okay, Kaustubi. Yes, Miss Kaustubi, I have unmuted you. Please unmute yourself. Good evening, ma'am. My question is to Piyush, ma'am. I'm in 11th standard and I've already been in 11th standard for 3 months now. I chose PCM as my subject of choice because I thought it had the most promise. But I realize now that science is not my cup of tea and I can't handle the course load. Is it too late for me to shift to commerce while I'm be able to make up the gap that is left in my syllabus? Yes, Piyush ma'am. Okay, Kaustubi. So as Neelam ma'am just suggested, you are never too late. तो मैं यही कहूंगी कौस्तुभी, जो दो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए गोल सेटिंग की, और नीलम मैम जो कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग बात कर रहे हैं, जितना आपका गोल अर्ली स्टेजेस के अंदर क्लियर होगा, तो मैं जो बात कर रही थी कि आपको उतना ही इजी रहेगा पाथ, इस तरीके के कंफ्यूजन्स नहीं आएंगे. तो अर्ली स्टार्टिंग इज डेफिनेटली गुड. और उसके बाद में आपको ये सारी चीजें जस्ट क्लियर हो रही हैं. साइकोमेट्रिक टेस्ट की तो बात हुई, बट आज के सेमिनार में बात नहीं हो पाई कि हम लोग यदि इंडिया में पढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं, हम लोग IIT में जाना चाह रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हैं, या हम इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं, तो CUET के लिए आपकी हैंड होल्डिंग कर रहा है मेंटोर क्रिश अलॉन्ग विद प्रगति पथ. आप यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एट योर अर्ली एजेस, आपने 9th में ही सोच लिया कि मुझे जो है यूएस की वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है. देयर इज कंप्लीट करियर गाइडेंस. SAT जो एंट्रेंस टेस्ट होता है यूएस के लिए कंपलसरी है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करा रहे हैं. यूके के अंदर आपको जाना है, तो विच ऑल यूनिवर्सिटीज आर गुड, विच ऑल यूनिवर्सिटीज आर यूसी आईवी लीग में कौन है, रसेल ग्रुप में कौन है, कैसे आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी स्कॉलरशिप दे पाएगी, एंड देन A to Z कि जब आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा तो आपका वीजा प्रोसेसिंग सब कुछ वहां पे स्टे. तो एंड टू एंड ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. आई एम कमिंग बैक टू कौस्तुभी क्वेश्चन कि आप लेकिन फिर भी लेट हो गए किसी वजह से. दिस कैन ऑलवेज हैपन, बट स्टिल जैसे जो अभी आपका केस है कि 3 महीने आपने PCM पढ़ने के बाद में रियलाइज कर रहे हो, तो कुछ पाथ ऐसे होते हैं. साइंस स्ट्रीम से जब आप कॉमर्स स्ट्रीम में आना चाह रहे हो, तो definitely as per my experience of last 2 decades, I would say you can easily manage, but the main important thing is
as we are lagging behind, देखिए सभी बच्चे जो हैं एक रेस में हम जब शामिल हैं, रेस तो है ही है कुछ भी मानो, तो सारे बच्चे जब एक गोल के लिए भाग रहे हैं तो हमें उसके अंदर सबसे बड़ा काम ये है कौस्तुभी कि आपको जो है उसके अंदर डिटरमाइंड होना पड़ेगा और आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना कॉन्फिडेंस लैक कर देते हैं। कोई बड़ा लॉस नहीं है, ऐड पाएंगे कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में कोई दिक्कत ज्यादा काम आएगी कि मैं कुछ भी लेट नहीं कवर अप विद थिंग्स, है ना। छोटी सी बात है, देखिए 3-3 4-4 साल नीट की तैयारी कराते हैं, लेकिन हम लोग एज अ गाइड जो है फॉर पूरे होते हैं। तो एज एक्चुअली थोड़ा सा आपको अपने लेवल के ऊपर काम करके बट % आपको समझ में आ गया कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो अर्लियर इज बेटर। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू मैम। राहुल, क्या पीयूष मैम के टाइम पे थोड़ा नेटवर्क में गड़बड़ हुई थी क्या? Yeah, yes, ma'am. I was about to say, like, there was some network disturbance. So, Kaustubi, like, after this meeting, we will sharing the Google form with you about the feedback. In that, you can mention your number, and I'll, like, our team will call you shortly after that. There is bad weather, I think, due to which हाँ internet हाँ, connection. पलक आप एक Yeah, बार चैट बॉक्स में yeah, गूगल it फॉर्म को happens. शेयर कर लो। राहुल, एक बार आप शेयर कर दो अगर गूगल फॉर्म चैट बॉक्स में। Oh, all right. एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोगों को एक छोटा सा गूगल फॉर्म, क्योंकि हमारा ये एक जॉइंट वेंचर है, वी ट्राइड टू रीच यू ऑल, वी ट्राई टू हेल्प यू ऑल। और अभी हम एक वेबिनार के साथ और आ रहे हैं बिकॉज वी नो द अपकमिंग एग्जाम इज CUET, और आज कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम उसे ले नहीं पाए। तो वी हैव एक्सीलेंट एक्सपर्ट्स जो कि बिल्कुल NTA में वर्क कर रहे हैं, जो इन एग्जामिनेशंस को सेट करते हैं। तो दे विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर दो सच एग्जाम्स एंड दे विल आल्सो हेल्प यू इन क्रैकिंग दोज एग्जाम्स सक्सेसफुली। So very soon, by the either by the second week of May or first week of May, by the end of the first week of May, we'll come up with one more webinar. तो आप अपना आज का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो कि आपको कैसा लगा और अगले वेबिनार की हम कुछ और अच्छे से तैयारी कर सकें। That's all for today. Thank you everyone. It was really wonderful having you all, and thank you again for taking out time on a weekend, on a busy weekend like this, क्योंकि weekends तो वैसे ही busy ही होते हैं, हमारी personal commitments होती हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए time निकाला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू पीयूष, थैंक यू राहुल। राहुल की तो अभी रिसेंट ही मैरिज हुई है और इसके लिए तो वीकेंड्स और भी ज्यादा कमिटमेंट वाले होते हैं, फिर भी ही अग्रीड टू कम टू आवर वेबिनार। तो राहुल, स्पेशल थैंक्स टू यू। सिद्धार्थ तो निकल गया है क्योंकि उसका आज एग्जाम है। वे एंड पलक, डेफिनेटली मेरे को पता है, तुम भी जब मैंने से कॉल किया तो शी वाज ऑन हर वे टू हर what the PG and she told me मुझे इतना टाइम तो दोगे ना कि मैं सिर्फ टी-शर्ट चेंज कर लूं। मैं कहा ओके, बस इतना ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा टीचर्स से। इससे टाइम, व्हेन इट कम्स टू टाइम, टीचर्स आर वेरी कंजूस इन गिविंग टाइम, क्योंकि हमें एक एक मिनट का हिसाब चाहिए और हम एक एक मिनट यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। पलक, बैक टू यू। So as we're coming to an end for today's webinar, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for making this event a success. Your active participation, insightful contributions, and unwavering support have truly made this webinar a memorable and enriching experience. To our esteemed speakers, Neela ma'am, Piyush ma'am, and Rahul sir, your expertise, passion, and dedication shone brightly throughout this session, inspiring us all to strive for excellence and pursue our dreams with determination. Finally, I would like to express my gratitude to the entire organizing team whose hard work, dedication, and attention to detail were instrumental in bringing this webinar to fruition. Your tireless efforts behind the scenes ensured the smooth execution of this event, and for that, we're truly grateful. Thank you and have a nice day ahead. Thank you everyone. Thank you Palak. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye.